from today our obstetric course begins. Actually, yesterday was demo class. Actual, we will start from today. So, yesterday I told I will continue the bleeding in pregnancy, but that we will retake again because yesterday lecture also not recorded, and many are new people. So our course will begin from today itself. So आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. और yesterday का जो lecture था वो मैं बीच में जब भी आएगा तब I will take. So first day is the for obstetric is physiological changes during pregnancy. So before moving to any pathology, we should at least know what are the normal changes. We can learn abnormal things only after we learn the normal things. So हमको पहले normal things के बारे में पता होना चाहिए. Then we can differentiate what is the pathology. So first we are going to discuss the physiological changes during pregnancy. Then we will take the lecture on normal antenatal care, all the advice, what the vitamins, what in ideal dose should be given. So we will take in a detail. Then we will take on investigations part, because in obstetric investigation part is very important. At what time, what investigation to be prescribed and how to interpret. उसको पढ़ना भी आना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट उस हिसाब से आनी चाहिए. सो पहले 4-5 दिन ओनली वी विल लर्न द नॉर्मल पार्ट्स. देन पिछले 5 दिन है उसमें वी विल गोइंग टू टेक pathological things like bleeding in pregnancy, vomiting in pregnancy, piles in pregnancy, mastitis in pregnancy, backache in pregnancy, constipation in pregnancy. So whole that elements we will going to take in last 5 days. First 5 days we will focus on normal changes, normal antenatal care, normal preconceptional counseling, and how to read investigations and which investigation offered at a which right time. Clear? Now, the first is physiological changes during pregnancy. During the pregnancy, there is a progressive anatomical, physiological and biochemical changes takes place, not only in genital organs, but whole system of the body. So pregnancy is not a kind of that the changes only takes in the reproductive part. The whole body itself is involved. Now this is just little bit about anatomy of the female genital organs. So this is external genitala. Upper part is mons pubis. This elevated part is mons pubis. This is mons pubis. Then the opening is called vestibule. This opening is called vestibule, which contains opening of urethral meatus and vaginal opening. So at the top there is a prepuce, clitoris, labia majora, labia minora, urethral opening, hymen, foresheet, posterior commissure and the anus. The main important thing you remember, what is mons pubis? Mons pubis is an elevated triangular portion at the front. Then there is a clitoris is the orgasm organ. Then below there is a vestibule, opening of urethral meatus and the vaginal opening. By side there is a labia minora and labia majora. Hymen is there, posterior commissure and the anus. And whole this area is known as perineum. This is the outer. Now this is the inner of external genitals. These all are perineal muscles that are called the pelvic floor muscles.
So whenever there is a prolapse or whenever there is a proper support is not given during the birth of delivery, these are weakened and can give rise to the prolapse later on. This is the internal genital organ. The uterus with cervix and the vagina at the anterior portion. It anteriorly there is a bladder and posteriorly is the rectum. The fold between uterus and bladder is called vesico-uterine fold. Peritoneal fold between uterus and bladder is vesico-uterine. And फ्रॉम यूट्रस एंड ब्लेडर के बीच का जो फोल्ड है उसको बोलते हैं पीओडी, पाउच ऑफ डगलास. ये क्यों आना चाहिए कि बिकॉज पैथोलॉजी में जब हम लर्न करेंगे तो इतना आपको बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि ऐसे होता है यूट्रस. दिस यूट्रस इज इन एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड पोजिशन, जो वजाइना से 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ब्लेडर की तरफ मूव है, तो इट इज कॉल्ड एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड पोजिशन. Now the physiological changes. तो first vulva. Vulva become edematous and more vascular. Labia minora hypertrophied. Pregnancy में क्या क्या changes होंगे? तो vulva become edematous and more vascular. Labia minora are hypertrophied. In the vagina become edematous, more vascular. Length of anterior vaginal wall increased. Then the uterus. The weight of uterus in a non-pregnant state is 60 ग्राम का यूट्रस होता है जनरली. At the term, it becomes 1 kg. 60 ग्राम से 1 kg का यूट्रस बन जाता है. नॉर्मल कैविटी कितना वो एक्सेप्ट करती है? 5 to 10 ml, यूजुअली 5 ml. एंड प्रेगनेंसी में 5 लीटर हो जाता है. यहाँ पे रॉन्गली रिटर्न है 5 लीटर. नॉर्मल लेंथ इज 7.5 सेंटीमीटर, जो प्रेगनेंसी में 35 सेंटीमीटर हो जाता है. तो इतना बड़े चेंजेस होते हैं. 60 ग्राम से 1 kg, 5 ml से 5 लीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर. Increase in the growth and enlargement of the body of uterus. In the pregnancy, muscles undergoes hypertrophy and hyperplasia. There is a stretching of muscle fibers, increase in the vascularity. It can lead to the uterine contraction called Braxton-Hicks contraction. What is that? It is irregular, infrequent, spasmodic, painless contraction occur without cervical dilatation of the cervix. तो अगर पेशेंट को इनिशियल फेज में मीन्स 2 month 3 months पे कई बार थोड़ा पेन होता है, तो वो जो पेन के जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको बोलते हैं ब्रैक्स्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन. वो लेबर के जैसे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं बिकॉज दे आर इरेग्युलर. जो लेबर के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो रेगुलर होते हैं. देन इनफ्रीक्वेंट, उसका कोई टाइम नक्की नहीं है. स्पैस्मोडिक, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन, पेशेंट को नहीं पता चलता है बट व्हेन यू पुट हैंड ऑन एब्डोमेन यू कैन फील द टाइटनिंग ऑफ द एब्डोमेन. विदाउट सर्वाइकल डायलिटेशन, कॉन्ट्रैक्शन होता है बट डायलिटेशन नहीं होता है सर्विक्स का. सो दैट टर्म्ड एज ब्रैक्स्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन. वाइल लेबर वाले जो कॉन्ट्रैक्शन है दैट आर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन. Patient is not conscious about it. Cervix hypertrophy and hyperplasia of the cervical gland, and there is a marked softening of the cervix called the Goodell sign. So when you examine the patient in first 2 months, you feel softening of the cervix. That is the demarcation of pregnancy. Breast, best evident in the primigravida, increase in the size. There is a hypertrophy and proliferation of the ducts and alveoli. There is axillary tail is there. Nipple and areola enlarged, erectile and pigmented. There is a presence of Montgomery's tubercles.
So changes occurs in the breast and nipple and areola region also. Secretion is begin to start from 12 weeks. Milk secretion, milk production start from 12 weeks. Skin. On the face, there is a chloisma gravidarum. What is that? There is a butterfly-like pigmentation seen in on the face of the pregnant ladies. Due to melanin deposition, this kind of picture you see, that is called chloisma gravidarum. On abdomen, there is a blackish discoloration of the line from xiphisternum to pubic symphysis. It is called stria gravidarum. Sorry, linea nigra. Black line is linea nigra, and due to mechanical stretching of the skin, there is a development of the stretch marks. Then weight gain, ये important point है, ये याद रखना जरूरी है. कितना weight gain होता है? Total weight gain is 11 kg. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आइडियल वेट गेन इतना होना चाहिए. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg. सो टोटल 11 kg वेट गेन होता है. एमोंग्स दैट 6 kg रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होता है और 6 kg मैटरनल वेट गेन होता है. मीन्स 3 kg फिटस का अप्रोक्सीमेट, यूट्रस का 1 kg एंड फैट एक्यूमुलेट होती है उसका मिला के. एंड मैटरनल में प्रेगनेंसी इज अ हाइपरवॉल्यूमिक कंडीशन, सो इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम एंड प्लाज्मा वॉल्यूम, सो फ्लूइड रिटेंशन. सो उसकी वजह से मैटरनल का वेट गेन होता है 6 kg में. अभी इंपॉर्टेंस क्या है? इफ देयर इज अ रैपिड वेट गेन, सपोज more than 2 kg in a month or more than 500 gram in a week, is a alarming sign. It is not normal, it is pathological. So that's why in every antenatal visit we should measure the weight and blood pressure at least, so we can know whether it is physiological, whether it is pathological. So there should not be way more than 2 kg weight gain in a month or more than 500 gram in a week. If weight gain is not there, then it's a sign of IUGR. Pregnancy, as I told you, it's a hypervolemic condition. So water retention up to 6.5 liter. So that's why polyuria is common in first and third trimester. बारी बारी यूरिन जाना पड़ता है. So it is due to two factors. One, compression effect of the bladder as well as altered body water metabolism leads to polyuria. There is a marked hematological changes are there. Plasma volume increased. Because of plasma volume increased, what happens? There is a hemodilution of hemoglobin and RBC. Suppose you take a 1 glass of lemon sharbat, lemon drink. Appropriate amount of water, sugar, salt and lemon is there. But then you add more and more water. What happens? There is a hemodilution of the sugar, salt and lemon. So it's a pregnancy is the same like condition. RBC and hemoglobin will remain same, but plasma volume is increased. So that leads to hemodilution of the RBC and hemoglobin. So that's why physiological anemia is common in pregnancy. Then the WBC. नॉर्मल WBC काउंट नॉर्मल में कितना होता है? 4000 to 10,000. हमारे सब में कितना होता है? 4000 to 10,000. But in pregnancy is a neutrophilic leukocytosis. So up to WBC can increase up to 20,000. Total protein AG ratio, protein increase. So AG ratio, albumin to globulin is
decreased. So hypoproteinemia is there. So that's why protein powder is prescribed. So if you understand this, then you can know कि why सबको प्रोटीन पाउडर लिखते हैं. ऐसा नहीं है कि बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए, because in pregnancy hypoproteinemia is there. So that's why protein powder is prescribed. Due to hemodilution of the hemoglobin, physiological anemia is there. So that's why iron is prescribed. ES are also high. Fibrinogen increase. Sometimes gestational thrombocytopenia. Platelet count decrease. That is also considered as a normal. हाँ बोलिए. टोटल प्रोटीन बढ़ रहा है, बट एल्ब्यूमिन टू ग्लोब्यूलिन रेशियो, सो एक्चुअली में मैं क्या बोलूं, इट्स अ हाइपोप्रोटीनेमिया होता है. एक्चुअली में देयर इज अ होल बॉडी का जो प्रोटीन है, तो एक्चुअल हमारा जो बॉडी लेवल जो मेंटेन होता है वो एल्ब्यूमिन टू ग्लोब्यूलिन रेशियो से मेंटेन होता है, बट दिस एल्ब्यूमिन टू ग्लोब्यूलिन रेशियो विल बी रिवर्स्ड. सो प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ हाइपोप्रोटीनेमिक कंडीशन. प्रेगनेंसी में ओवरऑल प्रोटीन इज डिक्रीज्ड होता है. सो ऑलवेज देयर इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी. तो आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज को आप देखोगे तो हम बोलते हैं कि प्रोटीन लो, स्प्राउट्स लो, या सप्लीमेंट देना है तो हम प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट करते हैं. और ड्यू टू हाइपोप्रोटीनेमिया इट कैन लीड्स टू द फिजियोलॉजिकल इडीमा ऑल्सो. पेशेंट को लास्ट मंथ में इडीमा आ जाते हैं, और हाइपरटेंशन जब बढ़ता है तब सिवियर प्रोटीन डाउन जाता है. So whole albumin to globulin ratio will be reversed. So these are the normal condition. Physiological anemia due to hemodilution, physiological edema due to hypoproteinemia की वजह से होता है. Leukocytosis may be common. Fibrinogen means blood coagulation may be altered, and sometimes platelet count is also we found low. Clear? CVS, cardiac output is increased, and blood pressure is decreased by 5 to 10 millimeter of mercury. What is mean? तो जो नॉर्मल एक्चुअली जो नॉर्मल प्रेगनेंसी जा रही है, तो उसमें जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, पहले तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 ट्राइमेस्टर होते हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अप टू 12 वीक. सेकंड ट्राइमेस्टर इज फ्रॉम 14 to 28 weeks, means 27 weeks, and third is 28 to 40 weeks. तो सेकंड ट्राइमेस्टर जो है उसमें हमेशा पोस्चरल हाइपोटेंशन पेशेंट को रहता है. मीन्स वो सो के उठता है तो ब्लड प्रेशर एकदम डाउन जाता है, और उसकी वजह से उसे वर्टाइगो रहता है. Due to this cardiovascular changes, and physiological edema also occurred due to pressure exerted by graved uterus on common iliac vein, because uterus normally pelvic organ होता है, वो ग्रेजुअली जैसे जैसे ग्रो करता है वो पीछे के इलियाक वेन्स को दबाता है. तो लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छी तरीके से नहीं होने के कारण इट लीड्स टू एडिमा. दैट इज कॉल्ड physiological edema of pregnancy. Iron metabolism, total iron requirement is approximate 1000 milligram. So absence of iron supplementation can leads to drop in HB level. उसका ये मतलब है कि 2 पेशेंट मैंने रखे हैं साथ साथ में. एक पेशेंट का प्री प्रेगनेंसी स्टेटस, जब भी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुए तब दोनों का HB कराया. दोनों का HB 10 ग्राम है सपोज, मान लो. एक पेशेंट है वो अच्छी तरीके से 9 मंथ या जो भी हम आयन जैसे आयन एंड फॉलिक एसिड देते हैं वो लेगा. एक पेशेंट कुछ भी नहीं लेगा, वो मानता है कि मैं अच्छी तरीके से खाना खाती हूं, मुझे सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है. एट द 9 मंथ फुल टर्म अगर आप दोनों का हीमोग्लोबिन चेक करोगे
तो जिसने 9 महीना आयन खाई उसका 10 का 10 ही होगा, ऐसा नहीं कि 10 का 20 हो जाएगा 9 महीने दवाई खाई तो। पर जिसने दवाई नहीं खाई है, वो मानता है कि मैं अच्छा खाना खाती हूँ, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, तो उसका HB8 हो जाएगा। Why? Because pregnancy is a high iron demand condition and plus physiological anemia always there. So that's why normal elemented iron, at least minimum 30 milligram of elemented iron, 30 to 60 milligram elemented iron should be supplied to each and every pregnant ladies. ब्लेडर, जो यूरिनरी ब्लेडर है उसकी म्यूकोजा भी इडिमेटस रहती है, सो इट लीड्स टू इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन. Digestive system, dyspepsia is very common. Gravid uterus also compress the stomach, so that's why dyspepsia and acidity is common. Endocrinal changes, as we know फॉलिकल रप्चर होता है ओव्यूलेशन के बाद, तो वो फॉलिकल में कौन क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम. दैट कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट 40 milligram of progesterone daily. So for implantation, normal progesterone secretion is required, and that is secreted by syncytial trophoblast. But after 6 to 8 weeks, this function is taken up by placenta. So that is the role why we give the progesterone up to 12 weeks. कि शायद LPD हो, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट की वजह से प्रोजेस्टेरॉन कम गिरता है तो उसका मिसकैरेज नहीं हो. दैट्स वाई progesterone to be supplemented for 12 weeks in case of the missed abortion or in high risk pregnancy. After 12 weeks, this function will taken up by the placenta. Then the thyroid gland. There is a hyperplasia of the gland, so iodine always fall. So that's why iodine intake is needed. दूसरा एक थायराइड में बताना था कि थायराइड का जो आयोडीन अपटेक है वो बदल जाता है. सो हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन देखने को मिलता है, और हमारा एम भी यह रहना चाहिए कि अभी नई नई गाइडलाइन के हिसाब से कि TSH इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुड बी लेस देन 3.5. आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, वो अभी एक नई गाइडलाइन आई है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्चुअल TSH शुड बी बिलो 3.5. इन सेकंड एंड थर्ड में इट शुड बी बिलो 4.5. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मार्क्ड इंक्रीज फॉल इन द TSH होता है. तो अगर हमने वो करेक्ट नहीं किया, सपोज हमें नहीं पता है और पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, बहुत होगा तो इट कैन लीड्स टू मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड. बट सपोज उसका TSH 6, 7 या 8 रहता है, उसने ट्रीट नहीं किया, तो बेबी विल डिलीवर नॉर्मली और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, बट हिज और हर IQ लेवल विल बी लोअर साइड. सो कई बार हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चे, एक बच्चा है वो बहुत होशियार है, एक है वो समझता है पर उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा कम होता है. सो दैट कुड बी द रीजन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी. सो अभी जो है वो लोग बहुत भार दे रहे हैं कि जैसे भी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो TSH सबका कराना चाहिए, और इवन इन माय प्रैक्टिस आई एम ऑल्सो यूज टू डू दिस. बेसिक एक प्रोटोकॉल होता है कि जैसे ही पेशेंट को प्रेगनेंसी पता चलती है तो इतने रिपोर्ट तो कराने के ही है. मैं मेरी प्रैक्टिस में क्या करती हूँ, आई ऑलवेज डू CBC, ब्लड ग्रुप, RBS, रैंडम ब्लड शुगर, HbSAg, HIV, यूरिन RM, सीरम क्रिएटिनिन,
सीरम TSH एंड HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, इतना तो सबका होना ही चाहिए। आपको प्री प्रेग्नेंट यानी जैसे प्रेगनेंसी रुकती है तो पहले का उसका हीमोग्लोबिन स्टेटस, WBC स्टेटस, शुगर का स्टेटस, इन्फेक्शन नहीं है वो तो रूल्ड आउट करना ही है, किडनी फंक्शनिंग सीरम क्रिएटिनिन कराएंगे, यूरिन में कोई इन्फेक्शन है तो पहले से ही ट्रीट कर दो, थायराइड लेवल शुड बी कीप इन अ नॉर्मल लेवल एंड HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, रूल आउट HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ये सारा रूल्ड आउट हो जाना चाहिए। सो थायराइड का भी इतना इंपॉर्टेंस है, अगर आता है सपोज 5 थायराइड आता है तो नॉर्मल इट इज कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल TSH, बट आई ऑलवेज गिव 25 माइक्रोग्राम थायरोनॉम टैबलेट टू दैट लेडी। फिर उसको बोलते हैं कि अगर इट इज जेस्टेशनल मीन्स प्रेगनेंसी रिलेटेड है तो डिलीवरी के 1.5 महीने बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप दवाई नहीं लो तो चलेगा, बट ड्यूरिंग द फिटल ग्रोथ डेवलपमेंट इट शुड बी kept at a normal level. So that's why कई सारे लोग थायराइड नहीं कराते, पूरा प्रोफाइल नहीं कराओ तो ऑलवेज गो फॉर ओनली सीरम TSH, T3 T4 नहीं कराओगे तो चलेगा, बट एक एंटीनेटल प्रोटोकॉल में इतना तो पहला जैसे भी प्रेग्नेंट लेडी आया तो इतना तो करा ही देने का, CBC, ब्लड ग्रुप, HbSAg, HIV, यूरिन RM, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम TSH एंड HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारा हम एंटीनेटल केयर में मैं लूंगी, बट इट इज द इम्पोर्टेंस टू डू द सीरम TSH। अगर हम फर्स्ट में पता करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें बाद में, अगर पेशेंट को 6-7 मंथ्स पे कराता है तो कोई मतलब नहीं है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट होना था वो हो चुका, अभी कराने से अभी देने से इतना फायदा नहीं होता है। सो दैट्स वाई ऑलवेज एम्फासिस टू पुट दिस इन्वेस्टिगेशन इन अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्लियर? हाँ बोलिए। हम्म। 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 हाँ देखिए, हाँ वो अच्छा, हाँ हाँ अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि कई सारे लोग होते हैं कि या इनफर्टिलिटी के भी मेरे सपोज बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म है और उसको थायरोनॉम टैबलेट शुरू है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि ऐसे केस में उसे जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है मैं रिपोर्ट कराती हूँ उसका, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में मैंने देखा है कि उसका थायराइड का डोज थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, पर दैट आई विल चेक ओनली बाय सीइंग द रिपोर्ट। तो उसका हम TSH एवरी 2 मंथ्स पे मैं रिपीट कराती हूँ। अगर मैंने बोला कि ये एक डिक्टम नहीं आई है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हर लेवल शुड बी बिलो 3.5 TSH, तो अगर इसका इवन 4.5 भी आता है तो मैं क्या करूंगी, उसका डोज थोड़ा बढ़ा दूंगी। सपोज पेशेंट 25 मिलीग्राम माइक्रोग्राम की थायरोनॉम लेता है तो आई विल पुट देम ऑन अ 37.5, बिकॉज उसमें 12.5 डोज के स्ट्रेंथ की सारी मेडिसिन अवेलेबल है। अगर पेशेंट सपोज 50 माइक्रोग्राम लेता है तो आई विल इंक्रीज 50 प्लस 12.5। अगर सपोज पेशेंट 25 की लेता है और उसका TSH बहुत आया, 10 आया, तो आई विल सिंपली जंप फ्रॉम 25 टू 50 माइक्रोग्राम और विल रिपीट TSH एट एवरी 2 मंथ। जो ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म है प्री प्रेग्नेंट स्टेट में, तो उसका हम एवरी 2 मंथ्स पे रिपीट कराते रहते हैं और ऐसा ध्यान रखते हैं कि उसका थायराइड लेवल शुड बी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिलो 3.5 एंड सेकंड एंड थर्ड में इट शुड बी बिलो 4.5, इतना रहना चाहिए। वो जो भी आपको जो डोज जड़ा बढ़ाना घटाना है वो आप उस हिसाब से करके उसका लेवल शुड बी मेंटेन। सो प्रोटोकॉल विल बी सेम, बट सपोज थायराइड नॉर्मल आया, यानी 8 वीक्स पे मैंने कराया और उसका TSH 1.2 है, सपोज मान लो
तो फिर मैं थायराइड बारी बारी नहीं कराती हूं, रिपीट नहीं कराते हैं। पर जिसका फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ हाई थायराइड या जिसका ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म है, ऐसे केसेस में एवरी 2 मंथ्स पे टीएसएच रिपोर्ट शुड बी रिपीटेड एंड डोज इक्विलिब्रेशन डन अकॉर्डिंग टू द टीएसएच वैल्यू। तो वो आपको ही करना पड़ता है। एवरी टाइम यू कांट सेंड पेशेंट टू द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। सो डोज टीएसएच के हिसाब से हम आगे पीछे करते हैं। थायरोनोम टैबलेट का सब 25, 37.5, 50 सब स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो जैसे डोज फ्लक्चुएट होता है ऐसे हमें डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। क्लियर? ओके। एनीवन हैज द डाउट? डॉक्टर प्रेरणा, यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? हाँ प्लीज। सी, हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स क्या होगा कि टीएसएच है वो बहुत लो होगा। लो यानी 0.01 या ऐसा आएगा। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इट शुड बी रूल्ड आउट। तो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसमें कार्बेमेजेपाइन देते हैं। सॉरी, कार्बेमेजेपाइन नहीं, सॉरी, उसकी अलग आती है, मैं नाम भूल गई हूँ उसका। एक्चुअली हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो मैं एक बार फिजिशियन को रिफर तो हम कर ही देते हैं, बिकॉज उन लोगों का भी क्राइटेरिया होता है कि किसमें हम मेडिसिन स्टार्ट करें। सो गॉइटर या ऐसी कोई गॉइटर की कंडीशन होती है तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है उसकी भी मेडिसिन होती है, पर उसकी जो मेडिसिन होती है दैट कैन जो होती है वो टेराटोजेनिक इफेक्ट वाली होती है। तो उसमें उसकी जो प्री प्रेग्नेंट स्टेट में अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो वो मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है। मैं नाम भूल गई हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है, बिकॉज कॉमनली हम इतना प्रिस्क्राइब हाइपरथायरॉयडिज्म का नहीं करते हैं, इसलिए मुझे याद नहीं है। बट वो हम फिजिशियन को भेजते हैं और वो उस हिसाब से उसे चेंज करता है। मैं नो, एल्ट्रोक्सिन, थायरोनोम ऑल आर ड्रग फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। एल्ट्रोक्सिन आती है, थायरोनोम आती है, ऑल आर द ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हाइपरथायरॉयडिज्म की है ना वो टोटली डिफरेंट है। सी पे है उसका नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी एग्जैक्टली, बिकॉज रूटीनली हम इतना मैं यूज नहीं करती हूँ, इसलिए अभी मुझे उसका याद नहीं है। पर मैं डेफिनेटली आज चेक करके कल आपको बोलूंगी। पर हाइपरथायरॉयडिज्म में भी अगर वेरी बिलो है टीएसएच, टीएसएच कैसा होगा उसका 0.01 होगा। हाँ, वेरी लो होगा। तो इतना लो है तो आई विल एटलीस्ट वन टाइम आई विल सेंड टू द फिजिशियन और वो उसको बोलेगा कि उनको एक्चुअली में ट्रीटमेंट देने की जरूरत है कि नहीं है। तो मोस्टली हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट है ना वो प्री प्रेग्नेंट को ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम आपको इसमें पता चलेगा। तो उसमें सिर्फ ध्यान ये रखना होता है कि उसकी प्री प्रेगनेंसी की जो मेडिसिन है वो टेराटोजेनिक नहीं है ना, वो हमें देखना है। वही में 2 मेडिसिन है, वो मुझे ऐसा हो तो सिर्फ एक मैसेज कर देना तो मैं चेक करके कल आपको वो क्लियर करूंगी। क्योंकि उसमें ऐसा मुझे याद है कि उसमें स्विच ओवर करना पड़ता है, बिकॉज दैट मेडिसिन हैव द टेराटोजेनिक इफेक्ट। तो वंस प्रेगनेंसी रुकती है ना तो उसको दूसरे मोड पे चेंज करना होता है। ऐसा कुछ है, पर मुझे एग्जैक्टली नाम अभी उसका याद नहीं आ रहा है। मुझे आप सिर्फ एक मैसेज कोई भी कर देना तो मैं चेकआउट करके कल आपको बोल दूंगी वो। नहीं, हाइपरथायरॉयडिज्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम इज हाइपोथायरॉयडिज्म में प्रॉब्लम होता है, बिकॉज ऑलवेज देयर इज अ इंक्रीज आयोडीन अपटेक। तो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा ना तो वो तो ऊपर से करेक्ट होगा प्रेगनेंसी में, बिकॉज आयोडीन डिमांड इज देयर। सो प्रेगनेंसी में मेनली यू विल सी द 90% ऑफ द प्रेगनेंसी जो केसेस होते हैं तो उसमें आपको हाइपोथायरॉयडिज्म 90% लेडीज में देखने को मिलेगा रादर देन हाइपरथायरॉयडिज्म। सपोज आप 100 पेशेंट थायराइड वाले देखते टीएसएच कराते हो तो मैं मेरी प्रैक्टिस की बात करती हूँ तो 90% पेशेंट, 90 नहीं 95 में
hypothyroidism will detect. Only 5% will detect as a hyperthyroidism. Got it? So it's a not very common. Hypothyroidism is very very common. So उसको आपको ट्रीट करते आना चाहिए और आपको उसका TSH लेवल मेंटेन करना है अगर पेशेंट का IQ बेबी का सब अच्छा हो चाहिए तो. क्लियर? Okay. So we are stopping here. Tomorrow we will start with antenatal care. प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग वो 2-3 दिन चलेगा. तो ग्रेजुअली वी विल टेक वन बाय वन एवरीथिंग कि क्या ध्यान रखना है, कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे. एवरी रूटीन पहला पेशेंट आया तो पहले से हम क्या स्टार्ट करेंगे ना. सॉरी, टुमारो वी विल गोइंग टू डिस्कस द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो कैसे कंफर्मेशन करना है, कैसे डिफरेंशियल डायग्नोस करना है, देन एंटीनेटल केयर विल कम. ओके, हाँ बोलिए. या हाइपोथायरॉइडिज्म itself leads to the missed abortion. और कई बार ड्यू टू हाइपोथायरॉइडिज्म it can affect the progesterone, decrease progesterone secretion. So ideally